So last time we left at this topic ignition temperature, which is the minimum temperature required by a substance to get ignited or its combustion. Please settle down fast, beta. You can write the ignition temperature of different substances. Like the question is, mark the following is low or high ignition temperature. You don't need to learn these temperature, but at least you should know which fuel has high ignition temperature and which fuel has low ignition temperature. Okay. Write the values so that you could make an idea which fuel has high ignition temperature and which fuel has low ignition temperature. Why? 8F, I cannot see you people. Okay, so have you written the values of ignition temperatures of different fuels? Some of you are still opening their copies. Please write it down fast. Is it visible or not? Now it is visible. You can see you all. Done? So from these values, you can see that the wood and LPG, they have high ignition temperature, while these petrol, kerosene, cow dung, इनका थोड़ा सा कम होता है ignition temperature, right? Next slide is about why the paper cup with water does not burn. आपके पास ये activity है एक. It is going to enter right on. And
Okay, A has joined. Connecting to audio, just give them a minute. Okay, so you have this activity in your book that if you take a piece of paper and fold it और आप उसको कैंडल के ऊपर ऐसे रखते हो और दूसरे केस में आप इस पीस ऑफ पेपर में वाटर ऐड कर देते हो तो वाटर ऐड करने से क्या डिफरेंस आता है किसने ये एक्टिविटी की है पढ़ी है कैन यू टेल मी व्हाट डिफरेंस is there in these two cases. In first case, you're just having a piece of paper, but in second case, you have a piece of paper and you fill it with water. एक कोन बना के उसमें you're adding water to it. So can you tell me what are the results of this activity? क्या होता है इस activity में? Who is going to tell me? Mehak from 8G. Who is Mehak from 8G? She is absent. Okay. Who is Dimple from 8F? Dimple? Is she? Yes, ma'am. Anji Dimple, can you tell me what is happening in this case? In case one, you are having this piece of paper filled with water, but in case two, you have a piece of paper folded and you're putting it into the flame. So what difference do you see in these two cases? क्या फर्क नजर आता है आपको क्या होता है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में कभी आपने कैंडल के आगे एक पेपर को रखा है टेल मी Ma'am, no. नहीं रखा अगर रखोगे तो सोच सकते हो क्या होगा उस पेपर का जली हुई कैंडल के आगे एक पेपर रख दोगे तो बताओ मैम क्या कि मैम इन केस वन जी मैम जो पेपर कोन है वो जलेगी नहीं चलेगी नहीं वाई सो मैम बिकॉज देयर इज वाटर इन इट तो वाटर क्या करेगा वाटर के होने से पेपर क्यों नहीं जलेगा हाँ जी यू कैन टेल मी चलो बेटा और हाँ 8th E1 बॉय इज रेजिंग हिज हैंड प्लीज टेल मी I can't hear you if you're speaking, Bacha. If you're answering, I can't hear you, sorry. I don't know what you replied, but I could not hear you. So let me tell you, जब इस पेपर कोन में पानी होगा तो ये पेपर कोन नहीं बर्न करती है क्यों क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं रीच करता क्यों नहीं करता इग्निशन टेम्परेचर रीच क्योंकि इसमें जो आप कैंडल से उसको हीट दोगे दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर जो पानी उस पेपर कोन में है वो पानी उस हीट को अब्सॉर्ब करता रहता है पेपर को नहीं जलने देता पानी जो अंदर होगा वो गर्म होने लगेगा लेकिन पेपर को नहीं जलने देगा अगर पेपर के बाहर जैसे पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल्स तो वो जो आप फ्लेम दे रहे हो वो उससे इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा सरफेस से और अंदर वाले वाटर को वो थोड़ा गर्म करने लगेंगे तो रीजन में आप ये लिखते हो कि हाँ इग्निशन टेम्परेचर हैज नॉट रीच्ड बट इसमें ऐसा होता है जैसे आप एक चीज और मैं आपको इस अभी तो कंबशन एंड फ्लेम है लेकिन वैसे ही जो वाटर अब्जॉर्प्शन की एक टेक्निक है और जिसमें इवेपोरेशन भी होती है
आप पता है मटके में पानी रखते हो तो वो ठंडा क्यों रहता है, किसी को ये पता है? when you keep water in that जो क्ले की पॉट्स होती हैं, मटका जिसको हम बोलते हैं, उनमें वाटर रखते हैं तो वो ठंडा कैसे रहता है? व्हाट इज द फिनोमिनन बिहाइंड इट? बोलो। क्या और किसी स्टील वेसल में रखने से वो वाटर ठंडा क्यों नहीं रहता? या हम बॉटल में, नॉर्मल बॉटल में रखते तो ठंडा क्यों नहीं रहता, लेकिन एक क्ले के पॉट में क्यों वो पानी ठंडा रहता है? किसी को पता है? ट्राई कर सकता है कोई, अगर किसी को पता है। आपने इवेपोरेशन का फिनोमिनन पढ़ा है? आपको पता है मटके में पोर्स होते हैं? आपने कभी अगर पेपर को भी, जैसे अगर फिल्टर पेपर आपने देखे हैं लैब में या ऐसे ही कभी देखा हो, तो उनमें भी छोटे 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 पोर्स होते हैं, और मटके में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स का क्या काम है? जैसे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो मटके में आप पानी डालते हो वो मटका गीला रहता है, सूखा नहीं होता, वो बाहर से भी गीला रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो क्या होता है कि उन पोर्स में वो वाटर सीप करके अंदर चला जाता है। अब बाहर से हीट आएगी, जो होती ही है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, हमें उस टेम्परेचर में ही तो हमको ठंडा पानी चाहिए। तो वो टेम्परेचर जो ज्यादा है दैट लीड्स टू इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे आपके पास ये पॉट है, इसके यहाँ पर जो सरफेस है उसमें पोर्स हैं। उन पोर्स में जो वाटर आपने इसमें फिल किया है वो सीप कर जाएगा। तो जब बाहर से हीट आती है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इन पोर्स में है सरफेस के ऊपर, पॉट के सरफेस के ऊपर, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो क्या जो अंदर वाला पानी है वहां तक हीट नहीं जा पाती है, क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होके एस्केप कर जाते हैं और अंदर वाला पानी ठंडा रहता है। तो वैसा ही ऐसे यहाँ पर भी कुछ है कि इस पेपर पे, जो फिल्टर पेपर होता है थोड़ा सा, जिसके हम ऐसे फिल्ट्रेशन के लिए कोन भी बनाते हैं, वो थोड़ा सा नॉर्मल पेपर से डिफरेंट होगा, वो थोड़ा ज्यादा पोरस होता है। ठीक है, उसके छोटे छोटे पोर्स में ये वाटर जो है वो सीप कर जाएगा। जब आप उसको हीट करोगे तो वो सीप्ड वाटर को हीट मिलेगी पहले। ठीक है, वो थोड़ा सा इवेपोरेट होगा, थोड़ा सा अंदर हीट जाएगी, पानी भी अंदर गर्म हो जाएगा, लेकिन वो पेपर डायरेक्ट इन टच में नहीं है ना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, तो वो उस हीट से वो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं। तो उस पेपर को इग्नाइट करने के लिए पहले उस वाटर को इवेपोरेट करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वो पेपर नहीं जलता है। ठीक है, सेम सा फिनोमिनन आपको ये भी अभी नहीं तो बाद में आप ये पढ़ोगे कि कैसे ये क्ले के पॉट्स कैसे पानी को ठंडा करते हैं। तो दैट इज कि जो भी हीट है वो अब्सॉर्ब होके वो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो केस वन में दिस कोन विल नॉट बर्न, बट इन केस टू द कोन विल बर्न, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी रीच कर जाएगा, क्योंकि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है जो उसकी हीट को अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, सो यू कैन राइट अ लाइन इफ यू वांट टू, इसमें आंसर लिखने के लिए। So the presence of water, write it down. The presence of water, in the presence of water, in the presence of water, comma, the ignition temperature of paper cup, of paper cup does not reach, does not reach, hence, hence, the paper cup does not catch fire, does not catch fire, and the water in the paper cup, the water in the paper cup becomes hot, becomes hot gradually. ठीक है, becomes hot gradually.
Okay, this is a general question. I hope you can answer it. Last time भी मैंने एक student से एक question पूछा था. It says both cow dung cake and petrol are fuel, but why we use petrol as a fuel to run vehicle and not cow dung? Why? Who is going to answer that? Last time भी मैंने same question पूछा था. एक स्टूडेंट ने आंसर भी दिया था. मैंने उसमें 2 पॉइंट्स भी बताए थे कि आप ऐसा भी लिख सकते हो. नहीं, पर वो मैंने शायद ट्रीज का वुड का पूछा था. यस. चलो अभी मुझे बताओ. आकाश फ्रॉम 8B. आकाश, कैन यू रीड द क्वेश्चन? अनम्यूट कीजिए और उसके बाद बताओ आंसर अपना. बोलो. क्या मुझे नहीं सुन रहा क्या आपकी आवाज? हाँ जी बोलो. हाँ, नाउ आई कैन हियर यू. टेल मी. Why cow dung is not used as fuel? नहीं बेटे, मेरे को नहीं मिला आंसर. Okay, please sit. I can't hear you. I'll tell you the answer then. So we have 2 points because of which we cannot use cow dung as a fuel. One is it is polluting in nature, and second is that it has low calorific value. Now, who knows what is calorific value? जिसको मैं सुन भी सकूं, कोई मुझे बता दे अगर. कौन बता सकता है? मुझे ही बताना पड़ेगा. हाँ जी, प्लीज. 8A7 boys going to. Calorific value is the an amount of energy produced in kilojoules on burning a kilogram of fuel. किलोग्राम या ग्राम? It depends on the amount of energy. If there is kilojoules, then we will burn kilograms. Whereas if the energy is produced in joules, then the weightage is in grams. ओके, ठीक है. वेरी गुड. प्लीज सेट. देखो, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कैलोरीफिक वैल्यू की, वो वैसे ग्राम्स में दी जाती है. अब वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी फ्यूल कितनी अच्छी है, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. पर मुझे लगता है आपकी बुक में जो डेफिनेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू किलोग्राम्स. ठीक है, दैट इज फाइन. वो किस यूनिट पे, पर वैसे जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, उसमें वो ग्राम्स के फॉर्म में दी जाती है. तो कैलोरीफिक वैल्यू वो है जैसे अगर किसी को हम कैलोरीज बात करते हैं, हम जब डाइट की भी बात करते हैं, हम बोलते हैं इसमें इतनी कैलोरीज है, इतनी कैलोरीज है. वही कैलोरीफिक वैल्यू, वहीं से वर्ड आया है. कैलोरीज से ही कैलोरीफिक वैल्यू है. ठीक है. तो यहाँ पर हम जैसे फूड हमारा फ्यूल है, तो हम उसकी कैलोरीज काउंट करते हैं कि हाँ ये खाया तो इतनी कैलोरीज हमने कंज्यूम की है. वैसे ही फ्यूल की भी कैलोरीज होती है कि कौन सी फ्यूल कितनी कैलोरीज देता है. तो वो फ्यूल ज्यादा अच्छी होती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है. ठीक है. तो पहले आप इसके लिए आंसर लिख लीजिए. Cow dung is not used as fuel. Cow dung is not used as fuel because it releases a lot of smoke, and
organic and inorganic pollutants. Organic and inorganic pollutants. Second point likho. It has low calorific value. It has low calorific value. Which means that it does not produce much energy. One more point which you can use is like rather than burning cow dung, अगर आप उसको as manure use करते हो, that will be more beneficial. ठीक है, जैसे जो उसमें nutrients होते हैं काउ डंग में, अगर आप उसको यूज करते हो एग्रीकल्चर के लिए, that is more beneficial. So you can write that using cow dung as fuel. Third point लिख लो, using cow dung as fuel destroys nutrients like nitrogen and phosphorus. नाइट्रोजन का सिंबल N, phosphorus का सिंबल P. Nitrogen and phosphorus that are essential for agriculture. आपने सुना होगा NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, नहीं सुना है तो अब सुन लो, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो फर्टिलाइजर्स के सैक्स होते हैं उनके ऊपर भी NPK फर्टिलाइजर्स लिखा होता है. तो ये नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी यील्ड के लिए. तो वो काउ डंग में मिलती है, इसलिए बहुत सारे गांव में तो जहां पर गाय भैंसे पाली जाती है उन्हीं का जो डंग केक्स हैं, डंग केक्स नहीं बनाए जाते, उनको इकट्ठा करके वहां पर एक हीप पूरा बना के उसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए. जब सोइंग करते हैं तो उससे पहले उसको पूरा फैला देते हैं. तो वो बेटर ऑप्शन है काउ डंग को यूज करने की, रादर देन यूजिंग इट एज अ फ्यूल, बिकॉज इट इज पॉल्यूटिंग और उससे न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है. ठीक है, नेक्स्ट इज explain the given figure. Who is going to explain this for me? Easy है. Sakshi from 8C. Is she there? Sakshi? जी साक्षी, can you tell me इसमें क्या हो रहा है पिक्चर में? आवाज तो नहीं आ रही है मुझे. हाँ, अब बोलो बोलो. Candle needs oxygen for burning. कैंडल नीड्स, कैंडल को चाहिए, बस कैंडल को चाहिए. बोलो. बोलो बेटा, कैंडल को चाहिए या कैंडल को जलने के लिए चाहिए? जलने के लिए. कैंडल को जलने के लिए चाहिए. क्या कहते हैं उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? कंबशन, जो लास्ट टाइम भी हमने किया था. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था. वेरी गुड, प्लीज सेट, है ना. बस थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड्स, पहले समझो चीजों को, देन लर्न साइंटिफिक वर्ड्स. ठीक है, उसको प्रॉपरली आंसर करने के लिए.
पहले समझना जरूरी है, बट आपको जब आंसर को लिखना है तो आपको लैंग्वेज याद करनी है, क्योंकि जो आप लिखोगे, क्वालिटी आंसर लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से नहीं लिखोगे तो सिर्फ आपका समझना भी इनफ नहीं है, समझना है उसके बाद याद करना, दोनों चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, सिर्फ रटना भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी पूछती हूँ तो आप जो बुक में डेफिनेशन आपने याद की होती है वो बता देते हो, हाँ हमको पता है, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लोहड़ी की बात की थी, मैंने कहा था कि आप लकड़ी जलाते हो तो आप फूंक मारते हो, तो आप उसको फूंक मारने का क्या पर्पस है? वो पर्पस है यूर प्रोवाइडिंग एयर फॉर द कंबशन। ठीक है, तो एयर जो है दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन के लिए एयर जरूरी है। यही इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया जा रहा है। ये ओपन जब तक रहेगी तो उसको एयर मिल रही है, ये कैंडल बर्न करती रहेगी, इसकी कंबशन होती रहेगी। कैंडल बनी है वैक्स से और इसकी विक जो है वो जलती रहेगी। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अभी मैंने जैसे मटके की बात, वो सेम सा कॉन्सेप्ट है। आप कभी अगर एक थ्रेड लेके उसको जलाते हो तो वो पूरा बर्न हो जाता है, आपने किया है नोटिस ऐसा? कोई आप कैंडल लेके अगर थ्रेड जलाओगे वो थ्रेड पूरी बर्न हो जाएगी, बट आपने ये सोचा है कि कैंडल के अंदर वाली थ्रेड क्यों नहीं पूरी बर्न होती? किसी को पता है ये तो प्लीज रेज योर हैंड्स, चाहे किसी की उसमें आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आंसर आई विल टेल यू, पर पता है, डू यू हैव दैट नॉलेज? I was not able to hear you last time also, beta. But I would like to know your name. I guess last time भी I was not able to see you, but I could see your hand. मुझे लग रहा है ऐसा। तो मुझे नाम आपका पता नहीं है, मगर आ जाके माइक अभी देखो, चेक करो वर्क कर रहा है। टेल मी योर नेम। 8E। एनीवेज नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बैठो बेटा, नहीं इट्स नॉट वर्किंग, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, तो मैं बता दूं, वैसे सिर्फ एक बच्चे ने पूरे सारे सेक्शंस में से एक बच्चे ने हैंड रेज किया। एनी अदर स्टूडेंट हु नोज कि कैंडल की विक जो है वो क्यों नहीं जलती है? 8G में कोई? हाँ, वन बॉय इज रेजिंग हैंड, आई गेस, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी। हाँ जी बेटा। And because in candle liquid wax surrounds the wick which prevents it from burning. Okay, what is this concept called? Do you know the word? This answer is correct, fine. पर ये भी पढ़ा है या पता है कि हो क्या रहा है? मैम पढ़ा है। पढ़ा है। Do you understand these words कि क्या हो रहा है? Yes. ओके ठीक है, गुड, प्लीज सेट, वेरी गुड। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको पेपर में बोला था, जैसे मैंने आपको मटके में बोला था, तो मटके वाले पोर्स, तो अगर किसी ने देखा है मटका तो उसको पता है कि उसके अंदर पोर्स होते हैं। पेपर में आपको जो स्मूथ पेपर है, ये वाले पेपर की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा था आपको कि जो फिल्टर पेपर होता है उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कैपिलरी एक्शन सुना है? कैपिलरी क्या होता है पता है? चलो, जिसको नहीं पता है मैं बताती हूँ। कैपिलरी एक्शन में जैसे अगर आप घर पे भी ट्राई करोगे, कुछ ऐसे एक वेसल में अगर आप वाटर लेते हो और उसमें कोई पतली सी ट्यूब डिप करते हो, मैंने तो पेन के साथ ही कर लिया था जब मैं छोटी थी, तो मैंने पेन के साथ ही ऐसे ट्राई किया था कि लेट मी सी कुछ होता है कि नहीं। तो ऐसे आप पानी लेते हो तो ये जो यहाँ पर जो पानी है वो इधर अंदर जाके, जो अंदर ये वाली जो ट्यूब है ना, इसमें ये वाटर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाहर वाला, क्योंकि ये अंदर घुस जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसे आप करते हो, मतलब ये नैरो वाला, इसका कम सरफेस एरिया है जो बीच में आपने ट्यूब डाली है, तो ये वाटर यहाँ पर राइज कर जाता है, इसी को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जहां जहां पोर्स होते हैं वहां पर भी ऐसा सा ही कुछ होता है कि वो उस पोर्स में घुस जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो थ्रेड है, थ्रेड भी कॉटन से बनी है, वो भी पूरा ऐसे नहीं है कि पूरा सॉलिड उसके अंदर कुछ है, मतलब कोई स्पेसेस नहीं है, उसके अंदर स्पेसेस होते हैं। उन स्पेसेस के अंदर
ये वैक्स जाएगी। आपने सराउंडिंग, जो भी आपकी बुक में वर्ड्स हैं उसमें ऐसे लिखा है कि उसने उसको सराउंड किया है। सिर्फ सराउंड ही नहीं किया, वो उसके अंदर भी होती है। अगर आप कैंडल भी कभी जलाओ ना, कैंडल की लंबी सी अगर थ्रेड होती है तो कुछ कैंडल्स में वो शुरू वाली थ्रेड पूरी जल जाएगी पहले, फिर से एंड में जो थोड़ा सा रहता है जिसके साथ थोड़ा 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 वैक्स हो रखा है वो थोड़ी सी जलती है। फिर बाकी वो कैपिलरी एक्शन से अपने पोर्स के अंदर, थ्रेड तो वो है ही, जरूरी नहीं कि बाहर ही, बाहर बाहर होगा तो वो मेल्ट होके नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो अंदर तक सीप की होती है। जो आपकी थ्रेड है उसके अंदर तक वैक्स गई होती है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। और फिर वो जैसे पेपर में भी आपने किया कि पेपर नहीं जला, तो वैसे ही अब ये थ्रेड नहीं जलेगा। जलेगा इन द सेंस कि वो खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वैक्स उसके अंदर है तो वो वैक्स जलती रहेगी और थ्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जैसे पेपर नहीं जला तो वैसे ही जो कॉटन थ्रेड है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जल के खत्म नहीं होती। ये क्या जल रहा है? ये वैक्स जल रहा है, ठीक है, जो वैक्स उसके अंदर घुसा हुआ है, जैसे कि मटके में पानी था, जैसे कि उस कोन का पेपर था। समझे सभी? ठीक है। और इन वन वर्ड तो आप ये बोलते ही हो कि हाँ, ये इसीलिए क्योंकि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, एयर इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। समझ आया? यस है तो हैंड रेज कर दो, नो है तो बैठे रहो। समझ आया कुछ? चलो ठीक है, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। Judging from 8E, complete and incomplete combustion. जशन बताएगा मुझे? जशन है यहाँ पे? अच्छा, 8E की तो आवाज ही नहीं आएगी। ठीक है, बच गए हो आप लोग आज। ओके, गुरप्रीत सिंह फ्रॉम 8F। हेलो गुरप्रीत। हाँ Yes, जी बेटा। आपको पता है व्हाट इज कंप्लीट कंबशन, व्हाट इज इनकम्प्लीट कंबशन? Ma'am, incomplete combustion in which their substance completely burnt. इनकम्प्लीट में कंप्लीटली बर्न, ये तो गलत हो गया। क्या बोला? फिर से रिपीट करो। Ma'am, incomplete combustion in which the substance fully complete. अच्छा, इनकम्प्लीट, ओके। इन मुझे लगा इनकम्प्लीट कंबशन में कंप्लीटली कैसे बर्न करेगा। अच्छा, कैन यू गिव मी एग्जांपल? डोंट गिव मी डेफिनेशंस, आई डोंट लाइक डेफिनेशंस। वो तुम अपने पेपर में लिखना। कब होता है कंप्लीट कंबशन? एक ऐसे बताओ कि मैम ऐसा हुआ था तो ये कंप्लीट कंबशन था, लेकिन ऐसा हुआ तो इनकम्प्लीट कंबशन है। ऐसे बता सकते हो? नहीं। अच्छा, तुम भी बताओ, तुमने लोहड़ी मनाई थी? Yes. यस, मनाई थी। लकड़ी जलाई थी? Yes. जलाई थी, फिर धुआं निकला था उसमें से? Yes. यस। फिर तुमने क्या किया जब धुआं आ रहा था? कुछ नहीं, धुएं में बैठे रहे, बस आंखें मलते रहे? यस मत बोलना, क्या किया था? टेल मी। What? बोलो, नहीं सुनाई दिया। बोलो बेटा। गुरप्रीत बताना नहीं चाहती मुझे क्या किया था उसने। ओके, मैं बताती हूँ फिर गुरप्रीत ने क्या किया था। देखो बेटा, जब आप, गुरप्रीत नहीं बोल रहे हो आप या सुनाई नहीं दे रहा मुझे, इट्स ओके, प्लीज इट, थैंक यू। देखो, जब आप लकड़ी जला रहे थे, धुआं आ रहा था, तो जगेंगी फर्स्ट टेंडेंसी जो होती है, अगेन वही जाके आप, हम तो, मैं मेरा बचपन तो गांव में,
गया है? तो मैं तो चूल्हे में, हमारे दादी नानी सब खाना बनाते थे, तो हम स्पेशल एक पाइप होती है जिसको हम एयर ब्लो करने के लिए यूज करते हैं। तो जब पहले इनिशियली लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं आता है बहुत, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होती है। फिर उसमें हम एयर ब्लो करते हैं, बार बार वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, बार बार लोहड़ी बना, अगली बार प्लीज लोहड़ी बनाना और कंबशन और फ्लेम समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जब धुआं निकलता है आप एयर ब्लो करते हो ताकि आप इनफ एयर उसको दे सको जलने के लिए, और फिर फ्लेम निकल आती है, धुआं नहीं निकलता और आंखों पे इतना नहीं लगता, ठीक है। तो जब भी धुआं निकलता है हम एयर ब्लो करते हैं ताकि जो कंबशन है उसके लिए इनफ एयर आप प्रोवाइड कर सको और फ्लेम आपको मिल सके, धुआं ना मिले। तो धुआं तब मिलता है जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। सिमिलर, अगर आपने चूल्हे में आग नहीं जलाई, लोहड़ी पे आग नहीं जलाई, तो घर में वैसे तो खाना भी नहीं बनाया होगा, तो मम्मा से पूछना कि मम्मा कभी अगर गैस पे कुकिंग के टाइम पे अगर आपकी जो वेसल्स हैं वो उस पे सूट सूट बोलते हैं, कार्बन के लेयर बन जाते हैं, काले हो जाते हैं जब बर्तन, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो गैस स्टोव होता है उसके छोटे छोटे जो छेद होते हैं, अगर मान लो कोई चीज आपने बनाई या दूध गर्म किया और वो पूरा ओपन के पूरा कवर हो गया, वो पोर्स बंद हो गए, या दाल या वॉट एवर कुछ भी गिरने की वजह से पोर्स बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, तो इनफ एयर नहीं मिलती है फ्यूल की कंबशन के लिए, तो उस वक्त भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। जो एलपीजी आ रही है नीचे से, फ्यूल आ रही है, और उस इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वेसल्स जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, उस पे कार्बन की लेयर जमना शुरू हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जो गैस स्टोव होता है उसके जो पोर्स हैं उनको खोला जाता है ताकि इनफ एयर आ सके उस फ्यूल की कंबशन के लिए, राइट। सो दिस इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन हुई जब इनफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द फ्यूल टू बर्न फॉर इट्स कंबशन, ठीक है, और इनकम्प्लीट में इनफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। समझो चीजों को, और जो नहीं आता है पूछा भी करो। देन ये गैस स्टोव दिया है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। अच्छा, ये क्रैकर्स भी जो बर्न करते हैं वो भी आपने धुआं तो देखा ही होगा, क्रैकर्स के मना करते हैं, पॉल्यूशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन भी होती है, पॉइजनस गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। किस किस ने दिवाली पे पटाखे चलाए थे वैसे? ओके, चलो ठीक है। अभी तो ग्रीन क्रैकर्स भी आ गए, पर मुझे तो उनमें भी बहुत धुआं और मुझे स्मेल आती है। तो बचपन में तो वैसे अच्छा लगता है क्रैकर्स जलाना, पर ठीक है थोड़े कम जला लेना, मैं मना नहीं कर रही। मेरा बेटा खुद जलाता है, तो तुम भी जला सकते हो, थोड़ा कम। मैं उसको भी मना करती हूँ बिकॉज अगले दिन पॉल्यूशन की वजह से बहुत लोग जो है एलर्जिक है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। आई एम वन ऑफ देम, इचिंग शुरू हो जाती है मेरे नोज में। ठीक है, चलो वो तो आपकी अपनी इच्छा है, जिसने जैसे करना है। सो अब है इसमें रैपिड कंबशन रिक्वायर्स एक्सटर्नल इग्निशन। इग्निशन तो हमने कर लिया कि जैसे गैस स्टोव में आपने गैस जलानी है तो आपको मैच स्टिक यूज करनी है उसको इग्नाइट करने के लिए, पटाखे के लिए भी आप इग्नाइट करने के लिए कैंडल्स भी लेते हो, फुलझड़ी से भी जलाते हो, ठीक है। तो कईयों को जल्दी चाहिए होती, कईयों को लेट चाहिए होती है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप फायर कैच कर लेती है, जो बहुत रिएक्टिव होती हैं, जैसे कि आपने सुना सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, सुनिए ये बात, यस और नो? रेज योर हैंड्स इफ यू हर्ड अबाउट इट कि सोडियम को केरोसिन में स्टोर, अच्छा ठीक है। तो इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि अगर उसको ओपन एयर में रख दिया जाए इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, एकदम से, इसीलिए उसको ओपन एयर में स्टोर ही नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कुछ कंबशन एक्सप्लोजन के साथ प्रोसीड करते हैं, जैसे कि आपको पता है क्रैकर्स जो हैं दे एक्सप्लोड व्हेन यू इग्नाइट देम। Why white phosphorus is stored under water? अभी जैसे हमने सोडियम की बात की, अभी व्हाइट फास्फोरस की बात करेंगे। व्हाइट फास्फोरस और
रेड फॉस्फोरस, पहले तो मैं आपको बताऊं ये फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स जैसे आपने डायमंड ग्रेफाइट सुना होगा, ठीक है, फुलरीन का मुझे पता नहीं, लेकिन आपने डायमंड और ग्रेफाइट तो सुना है, ये जो हैंड्स आपने सुना है, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों वर्ड सुने हैं? वेरी गुड, सुनने भी चाहिए, इतना कोई वो नहीं है रेयर चीज, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन ही होते हैं, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, ठीक है, दोनों कार्बन ही हैं, मगर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, ठीक है। वैसे ही रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस दोनों फॉस्फोरस ही हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट कलर ग्रे लस्टर वाला होता है, तो और रेड फॉस्फोरस रेड कलर का होगा, लेकिन जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो पॉइजनस भी होता है, और एक प्रॉपर्टी होती है उसकी, फॉस्फोरिसेंस बोलते हैं उसको, मतलब इट ग्लोज इन डार्क। क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। तो ये कहता है वाई व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे मैंने सोडियम के लिए बोला वैसे ही उसको आप एयर में रखोगे इट कैचेस फायर, ठीक है, या थोड़ा सा भी उसको इग्नाइट करने की कोशिश करोगे इट कैचेस फायर, तो इसीलिए उसको अंडर वाटर स्टोर किया जाता है, right? Then is why can't we use white phosphorus in matchstick like red phosphorus? Because it is poisonous. पहले इनिशियली यूज किया जाता था, तो जो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, तो जो लेडीज ये बनाती थी तो उनको हाथ में इन्फेक्शन एंड ऑल प्रॉब्लम्स थोड़े होने लगे इसकी पॉइजनस नेचर की वजह से, तो फिर वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसीलिए व्हाइट फॉस्फोरस हम नहीं यूज कर सकते, वो इतना कंबस्टिबल है, इतना पॉइजनस है कि वी कैन नॉट यूज इट, ठीक है। देन इज Why does damp wood take more time to catch fire than dry wood? अब ये चीज मैंने अगेन हमने तीन बार तो कर ली, जैसे कि वो पेपर वाली बात कर ली कि पेपर में वाटर था तो पेपर बर्न नहीं किया, फिर हमने बात की और क्या पढ़ा था, मटके वाली बात कर ली कि वो पोर्स में वाटर सीप किया था, और एक और थर्ड कौन सा किया था, एक और चीज पढ़ी ना हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट की, कौन बताएगा मुझे? कुछ और भी पढ़ा अभी? नहीं पढ़ा? देखो किसी को याद नहीं क्या क्या पढ़ा है हमने? कंप्लीट इन, हाँ ये कैपिलरी एक्शन मैंने आपको बताया था, इसमें कैपिलरी एक्शन बताया था, ठीक है, पेपर वाला और मटके वाला। तो सेम यहाँ पर भी है that water makes the reaction between fuel and oxygen slow and thus raise the ignition temperature of fuel, कि अगर उसमें जो वाटर है तो जो भी आप उसको हीट लाइट whatever दे रहे हो that will get consumed, और उससे जो वुड का ignition temperature है that will rise, ठीक है। you can write it down, write down the answer, लिखो, नहीं लिखना? The screen has freezed.